A very good morning to all of you. This is Abhilash Navata from Layal Public School. And students, today we all are going to continue our chapter number 8 of history textbook. The name of the chapter is Women, Caste and Reform. In our previous class, we started our topic caste and social reforms. We talked about it. We talked about some of the we talked about Ghulamgiri and we talked about demands for equality and justice, especially in the 19th century. Now our today's topic is the non-Brahman movement. The non-Brahman movement. We also talked about the temple movements also, which was started by Dr. Bhimrao Ambedkar. Three temple movements were started by him in the period between 1927 to 1935. Okay, so now our next topic is the non-Brahman movement. So this is the picture of E.V. Ramaswamy Naicker or Pariyar. He was called as Pariyar also. So in the early 20th century, the non-Brahman movement started. The initiative came from those non-Brahman castes that had acquired access to education, wealth, and influence. Obviously, those non-Brahman caste or classes who got the opportunity to educate themselves, who were wealthy and who influenced the society, they took the initiative and started the non-Brahman movement. They argued that Brahmins were heirs of Aryan invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the regions, the indigenous Dravidian races. They also challenged Brahmanical claims to power. Now, what they criticized and they argued that जो Brahmins, Aryan invaders के जो आर्यन ने क्या किया है, हमारे नॉर्थ और सदर्न लैंड्स को इन्वेड किया है, टेक ओवर किया है और ब्राह्मण्स को उनके जो है एज एन एयर जो है कंसिडर किया जाता था. बट जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट है इस लैंड के वो है ड्रविडियन रेसेस. जो ये ड्रविडियन पीपल है, इंडिजीनियस पीपल है, ये क्या है, ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं. बट दे चैलेंज की जो ब्राह्मणिकल क्लेम्स, ब्राह्मण्स जो क्लेम करते हैं कि वो आर्यंस हैं और उन्होंने क्या किया है कि उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज द हायर क्लास. तो ये इन चीजों को भी इन्होंने क्या किया है, चैलेंज किया था. E.V. Ramaswamy Naicker or Pariyar, as he was called, came from a middle class family. Interestingly, he had been an ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. Later, he became a member of the Congress, only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by nationalists, sitting arrangements followed caste distinction, that is, the lower caste were made to sit at a distance from the upper caste. So E.V. Ramaswamy Naicker middle class family से belong करते थे and he was a ascetic. What is the meaning of ascetic? Ascetic means self-discipline. Okay, he एक जो तपस्वी होते हैं उनको बोला जाता है ascetic. He followed the policy, he followed asceticism. So he studied Sanskrit scriptures very carefully, बहुत carefully उन्होंने संस्कृत scriptures को भी जो है study किया है. He was a very learned man and
इवन ही ऑल्सो ज्वाइंट कांग्रेस ऑल्सो, कांग्रेस को भी ज्वाइन किया, बट एट लास्ट ही लिव इट। क्यों उन्होंने छोड़ क्यों दिया था? बिकॉज उनको उन्होंने देखा जो भी नेशनलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं वहां पे, जब भी मीटिंग्स होती है तो उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो कास्ट डिस्टिंक्शन के बेसिस पे होती है। दैट इज कि जो लोअर कास्ट है उनको अपर कास्ट से डिस्टेंस में रह के जो है बैठना पड़ता है। Convinced that untouchables had to fight for their dignity, Pariyar founded the self-respect movement. So, for the dignity, for the self-respect of the untouchables, Pariyar, E.V. Ramaswamy Naicker, he founded the self-respect movement. Even he argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins. अब उनका कहना था तमिल और द्रविडियन कल्चर के जो ट्रू अपहोल्डर्स हैं वो अनटचेबल्स हैं, जिन्हें आप अनटचेबल कंसिडर करते हैं वो ही ट्रू इनहैबिटेंट्स हैं यहाँ के, और जिन्हें ब्राह्मण्स ने क्या कर दिया है, सब्जुगेट कर दिया है, उनकी पावर को, उनकी अथॉरिटी को उन्होंने इन्वेड कर लिया है ब्राह्मण्स ने। He felt that all religious authorities saw social divisions and inequality as God-given. Untouchables had to free themselves, therefore, from all religions in order to achieve social equality. So he talked about social equality. उन्होंने कहा कि भगवान ने जो है सबको एक जैसा बनाया है, ठीक है, और अगर आप जो ये रिलीजियस अथॉरिटीज है, अगर आप इनइक्वालिटी मानते हो और आपको लगता है भगवान ने ये चीज बनाई है, तो अनटचेबल्स को अपने आप को इस चीज से फ्री करवाना पड़ेगा एंड जो ये सोशल इक्वालिटी है इसे अचीव करना पड़ेगा। सोशल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में आपको स्टेप जो है उठाना पड़ेगा। Pariyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. मतलब उन्होंने जो है भगवत गीता, रामायण और जितने भी आपके हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, कोड जो आपके कोड्स ऑफ मनु, जो एंशियंट लॉ गिवर है, ठीक है, जिन्होंने काफी स्क्रिप्ट एपिक्स वगैरह बताई है, इनके उनका जो इम्पोर्टेंस बताया है, तो इन सबको उन्होंने क्या किया है, क्रिटिक किया है। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women. कि ये जितने भी आपके हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण्स जो हैं वो सबसे सुपीरियर हैं और जितनी भी कास्ट्स हैं वो इंफीरियर हैं। ब्राह्मण्स उन पे जो अपना अथॉरिटी जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एंड मेन जो है वो वुमेन को डोमिनेट करना चाहते हैं। These assertions did not go unchallenged. The forceful speeches, writings, and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders. But Orthodox Hindu society also reacted by founding Sanatan Dharm Sabhas and Bharat Dharm Mahamandal in the north, and the associations like Brahman Sabha in Bengal. The object of these associations was to uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scriptures. Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own times. So, बहुत सारे जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, अब सोशल इक्वालिटी के लिए भी जितने भी स्टेप्स उठाए गए थे, बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे स्पीचेस हुए, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो बट जो अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने भी क्या किया, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया, लाइक सनातन धर्म सभा उन्होंने फाउंड किया, भारत धर्म महामंडल नॉर्थ में भारत महामंडल उन्होंने एस्टेब्लिश किया, ब्राह्मण सभा बंगाल में एसोसिएट किया उन्होंने। एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव था इनका कि जो हिंदुइज्म का ये कास्ट डिस्टिंक्शन है उसे हमें बना के रखना, इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। सो एंड शो हाउ दिस वाज सैंक्टिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स, ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स है इसमें ये कैसे क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस चीज को भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बना के रखा था और उन्होंने इसको प्रूव किया था।
बहुत सारे डिबेट्स हैं कास्ट को लेके, कॉलोनियल पीरियड में भी चले, इवन आज के टाइम पे भी हम देखते हैं बहुत जगह जो है हमें कास्ट डिस्टिंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म द ब्रह्मो समाज, just look at this picture. This is Keshav Chandra Sen, one of the main leaders of the Brahmo Samaj. The Brahmo Samaj. Now, who will tell me who founded Brahmo Samaj? Raja Ram Mohan Roy founded Brahmo Samaj, and Keshav Chandra Sen, he was one of the main leaders of the Brahmo Samaj. The Brahmo Samaj, formed in 1830, prohibited all forms of idolatry and sacrifice. Especially सती प्रथा जो था, इस चीज पे सती प्रथा को इन्होंने बैन किया था। और ये ब्रह्मो समाज जो था, जो आइडल वर्शिप है, जो मूर्ति पूजा है, उसको भी क्या करती थी, प्रोहिबिट करती थी। जितने भी सैक्रिफाइसेस मानते थे कि बलि देनी चाहिए, एनिमल सैक्रिफाइस हो या फिर ह्यूमन सैक्रिफाइस है, ये इन सब टाइप के जो सैक्रिफाइसेस हैं इनको प्रोहिबिट करती थी। Believed in the Upanishads and forbade its members from criticizing other religious practices. Upanishads में believe करते थे और अपने members को दूसरे religious practice को criticize करने के लिए और अपने religion को superior बताने भी क्या करते थे, वो उन्हें अपने members को रोकते थे, उनको बताते थे कि सारे जो रिलीजन्स हैं वो क्या है, वो सुपीरियर है, कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। It critically drew upon the idols of religions, especially of Hinduism and Christianity, looking at their negative and positive dimensions. इन्होंने जितने भी रिलीजन्स हैं, स्पेशली अगर हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो इनके जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको उन्होंने देखा और इन सबको उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट, डेरोजियो एंड यंग बंगाल। हेनरी डेरोजियो, दिस इज द पिक्चर ऑफ हेनरी डेरोजियो। Henry Louis Vivian Derozio, a teacher at Hindu College, Calcutta in the 1820s, promoted radical ideals and encouraged his pupils to question all authority. Referred to as the Young Bengal movement, his students attacked tradition and custom, demanded education for women, and campaigned for the freedom of thought and expression. Henry Derozio, he was a teacher at Hindu College, Calcutta में जो Hindu College था वहाँ के वो teacher रहे, and he encouraged his students to question about the authority of all the ideas of religion. Even he referred to as the Young Bengal movement also, and उनके जो students हैं उन्होंने traditions, जो established traditions और customs थे, उन पे attack किया, उन पे questions किए, उनके आंसर्स जो थे वो चाहते थे, और वो चाहते थे कि वुमेन के लिए भी जो है एजुकेशन होनी चाहिए, एंड कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक फ्रीडम होनी चाहिए कि हम अपने एक्सप्रेशंस को, हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को हम क्या है, फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट, द रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को अभी रिसेंटली जो है yes, Swami Vivekanand, the Ramakrishna Mission and Swami Vivekanand, named after Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekanand's guru. The Ramakrishna Mission stressed the ideal of salvation through social service and selfless action. अब रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्हीं के नेम पे एक मूवमेंट, एक मिशन चला था, रामकृष्ण मिशन, और जिसका मेन जो आइडल था वो क्या था, आइडल ऑफ सैल्वेशन, आइडल ऑफ सैल्वेशन through social service and selfless
एक्शन, कि ये जो हमें जो भी सोसाइटी में हार्म हो रहा है उसे हमें क्या करना है, हमें उसे हमें उस लॉस को क्या करना है, हार्म होने से बचाना है, और हम किसके थ्रू ये जो हार्म हो रहा है, जितने भी सोशल लेवल्स है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, वो हम सोशल सर्विस और सोशल एक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसे हम रोक सकते हैं। Swami Vivekanand, whose original name was Narendra Nath Datta, combined the simple teachings of Sri Ramakrishna with his well-founded modern outlook and spread them all over the world. After hearing him in the World Parliament of Religions at Chicago in 1893, the New York Herald reported, "We feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation." Indeed, Swami Vivekanand was the first Indian in modern times who re-established the spiritual preeminence of the Vedanta philosophy on global scale. But his mission was not simply to talk of religion. He was extremely pained at the poverty and the misery of his countrymen. He firmly believed that any reform could become successful only by uplifting the condition of the masses. Therefore, his clarion call to the people of India was to rise above the narrow confines of their religion of the kitchen and come together in the service of the nation. अब स्वामी विवेकानंद जो थे, his original name was नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, एंड उनकी जो टीचिंग्स थी काफी सिंपल टीचिंग्स थी। श्री रामकृष्ण ने उनकी टीचिंग्स को उनके गुरु थे, एंड जो श्री रामकृष्ण की टीचिंग्स थी उन्होंने उस पे एक पूरे वर्ल्ड में क्या किया, उसको स्प्रेड करने की कोशिश की थी। एंड इवन शिकागो पार्लियामेंट, द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो में भी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने न्यूयॉर्क हेरल्ड रिपोर्टेड, न्यूयॉर्क हेरल्ड जो वहां का न्यूज़पेपर है, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्न्ड नेशन, कि इस डेवलप्ड नेशन में, इस एजुकेटेड नेशन में, इस लर्न्ड नेशन में ऐसे फुलिश लोगों को जो है एज अ मिशनरी क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। इवन इंस्टेड जो स्वामी विवेकानंद थे वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेदांत फिलॉसफी को, हमारे वेदास को, वेदांत फिलॉसफीज को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। और उनका जो सिंपल था, उनका जो मिशन था वो क्या था, बहुत सिंपल था। उन्होंने नॉट खाली रिलीजन की बात नहीं की थी, एंड इवन उन्होंने पॉवर्टी की बात की थी, जो उनके इंडिया में जो लोगों की पॉवर्टी थी, उनके जो दुख थे, जो डोमिनेंस हो रहा था, जो ऑपरेशंस हो रहा था, उन सब चीजों की उन्होंने क्या की थी, बात की थी। उनका ये मानना था कि हम अपने सोसाइटी में एक रिफॉर्मेशन ला सकते हैं, और लाना जरूरी है। अगर हम तभी ला सकते हैं जब हम अपने जो पुअर क्लास है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, अगर उनको अपलिफ्ट करें, उनको हम रेज करें, उनको डेवलप करें। सो उन्होंने कहा रिलीजन ऑफ द किचन एंड कम टुगेदर इन द सर्विस ऑफ द नेशन, कि हमें अपने रिलीजन को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए, और हम सबको आपस में मिलके यूनाइट होके अपने नेशन के लिए सर्विस देनी चाहिए। By sending out this call, he made a signal contribution to the nascent nationalism of India. His sense of nationalism was, however, not narrow in its conception. He was convinced that many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nations of the world come together on an equal footing. Therefore, his exhortations to the youth was to unite on the basis of a common spiritual heritage. In his exhortation, he became truly the symbol of a new spirit and a source of strength for the future. So after this call, उन्होंने क्या किया, after this call, he made a signal contribution to the nascent nationalism. Now, what is the meaning of nascent nationalism? Nascent nationalism means
जो भी हमारा यूथ है वो फ्यूचर में हम कितने केपेबल हैं, हम कितने पोटेंशियल हैं, ठीक है, कि उस चीज को लेके जो है उन्होंने नेशनलिज्म की बात की थी, कैपेबिलिटी को लेके उन्होंने जो है नेशनलिटी की बात की थी, और उन्होंने कहा कि अभी तो बस ये जो है बिगिनिंग है नेशनलिज्म की, और हम क्या कर सकते हैं, हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैनकाइंड की वो हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अगर हम सब साथ में मिलके चलें तभी हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। Therefore, his exhortation to the youth was to unite on the basis of a common spiritual heritage. जो उनका जितना भी जो भी उपदेश होते थे, जो भी उनका एनकरेजमेंट स्पीच वगैरह होती थी, उसमें या यूथ को, स्पेशली यूथ को यूनाइट करने की बात होती थी, और उनको कहा जाता था कि एक कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज में जो हमारा स्पिरिचुअल डिवोशन है वो कॉमन होना चाहिए, तभी हम जो है एक हमारा जो फ्यूचर है काफी स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्वामी विवेकानंद। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रार्थना समाज। Established in 1867 at Bombay, the Prarthana Samaj sought to remove caste restriction, abolish child marriage, encourage the education of women, and end the ban on widow remarriage. Its religious meetings drew upon Hindu, Buddhist, and Christian texts. Now, प्रार्थना समाज बॉम्बे में 1867 में स्टैब्लिश हुई थी, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करना, एंड वुमेन एजुकेशन को एनकरेज करना। इवन जो विडो रीमैरिजेस था, विडो रीमैरिज पे जो बैन था उस चीज को, उसको भी एंड करना, और इनका जो रिलीजियस मीटिंग्स था वो हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट के बेसिस पे होता था। नेक्स्ट, द वेदा समाज established in Madras, Chennai in 1864. The Veda Samaj was inspired by the Brahmo Samaj. It worked to abolish caste distinctions and to promote widow remarriage and women's education. Its members believed in one God. They condemned the superstitions and rituals of Orthodox Hinduism. Now, Veda Samaj ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड होके मद्रास प्रेजेंट डे चेन्नई में 1864 में क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ था। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे कि कास्ट जो डिफरेंसेस थे उसे अबॉलिश करना था, उसे रिमूव करना था सोसाइटी से, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना और वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड उनके जो मेंबर्स थे एक ही गॉड पे बिलीव करते थे, और ये जितने भी सुपरस्टिशंस थे या फिर आप जो भी ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स थे उनको वो क्या करते थे, अनएडवोकेट करते थे, उसके आगे उसको क्रिटिसाइज करते थे। नेक्स्ट, द अलीगढ़ मूवमेंट। Mohammedan Anglo-Oriental College, founded by Syed Ahmad Khan in 1875 at Aligarh, later became the Aligarh Muslim University, जो अलीगढ़ AMU के नाम से जो जानी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में स्टैब्लिश हुई थी, और उसका जो प्रीवियस नेम था वो था मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था इसे। द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस to Muslims. The Aligarh movement was, as it was known, had an enormous impact in the area of educational reform. तो अलीगढ़ मूवमेंट जो मेन जो इंस्टीट्यूशन था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मॉडर्न एजुकेशन को ऑफर करती है, वेस्टर्न साइंस के जो सब्जेक्ट्स है वो ऑफर करती है, एंड स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए। और ये जो अलीगढ़ मूवमेंट था ये एजुकेशनल रिफॉर्म में, अगर हम एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने, वाइटल रोल इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्ले किया है। ये सैयद अहमद खान की जो ये यूनिवर्सिटी उन्होंने उसने। नेक्स्ट, द सिंध सभा मूवमेंट, ये दूसरी आपकी एजुकेशनल रिफॉर्म आप मान सकते हो। रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिक्स, द फर्स्ट सिंध सभास वर फॉर्म्ड एट अमृतसर in 1873 and at Lahore in 1879.
The Sabha sought to rid Sikhism of superstitions, caste distinction, and practices seeing them as non-Sikh. They promoted education among the Sikhs, often combining modern instruction with Sikh teachings. अब सिंह सभा मूवमेंट चला जिसमें कि जो फर्स्टली कहाँ पे फॉर्म हुई थी, अमृतसर 1873 में और लाहौर में 1879 में स्टैब्लिश हुई थी, और इनका जो मेन मोटिव था कि जो भी सुपरस्टिशन है सिखिज्म को लेके उसको हमें रिमूव करना है, जो कास्ट डिफरेंसेस है वो हमें क्या करना है, उसे रिमूव करना है, जितने भी ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो नॉन सिख कंसिडर किए जाते हैं उन्हें हमें क्या करना है, उनसे हमें फाइट करनी है। इवन सिक्स के लिए उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है उन्होंने प्रमोट की, इवन जो मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस थे उसको सिख टीचिंग्स में क्या किया, उसको इन्वॉल्व किया, कंबाइन किया। नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर, खालसा कॉलेज अमृतसर established in 1892 by the leaders of the सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने 1892 में खालसा कॉलेज जो है स्टैब्लिश की थी। नाउ एल्सवेयर ब्लैक स्लेव्स एंड व्हाइट प्लांटर्स। You have read about how Jyotirao Phule established a connection in his book Ghulamgiri between caste oppressions and the practice of slavery in America. What was this system of slavery? From the time that European explorers and traders landed in Africa in the 17th century, a trade in slaves began. अब देखो स्लेवरी यूरोप फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, नेक्स्ट ईयर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ने वाले हैं और उसमें आप पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे स्लेव ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि एज यू ऑल नो कि बहुत जगह इंडस्ट्रीज वगैरह भी स्टैब्लिश हो रही थी और मिलिट्री के लिए पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो बहुत सारे अफ्रीकन को जो है अमेरिका सेंड किया गया था, यूरोप में सेंड किया गया था, और वहां से जो है स्लेव ट्रेड बिगिन हुआ था। स्लेव्स मतलब कि गुलाम बना के, लोगों को गुलाम बना के एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली कैरिबियन सिटीज में भेजा जाता था, अफ्रीका से अमेरिका। सो कैरिबियन सिटी, कैरिबियन आपका अमेरिका में ही है। सो ब्लैक पीपल वर कैप्चर्ड एंड ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, sold to white planters and made to work on cotton and other plantations. Most of them in the southern United States. In the plantation, they had to work long hours, typically from dawn to dusk, punished for inefficient work and whipped and tortured. अब देखिए अफ्रीका से अमेरिका उनको फोर्सफुली कैप्चर करके लेकर आया जाता था, और जो व्हाइट प्लांटर्स थे उन्हें कॉटन इंडस्ट्रीज में, कॉटन प्लांटेशन में जो है उनको उनसे वर्क करवाया करते थे। स्पेशली जो सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पे काफी वर्क होता था, वहां पे काफी प्लांटेशंस थे। बहुत लंबे समय तक उनको इन प्लांटेशंस में काम करना पड़ता था, सुबह से लेके शाम तक, मतलब सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त तक उनको क्या है वो काम करना पड़ता था। अगर वो अच्छे से काम नहीं करते थे तो उनको टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, बीट किया जाता था। Many people, white and black, opposed slavery through organized protest. In doing so, they invoked the spirit of American Revolution of 1776, exhorting, "See your declaration, Americans. Do you understand your own language?" In his moving Gettysburg Address, Abraham Lincoln held that those who had fought slavery had done so for the cause of democracy. He urged the people to strive for racial equality so that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. So at that time, अब्राहम लिंकन, आप सबने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा, कोई ना कोई स्टोरी आपने बचपन में रीड की होगी। तो अब्राहम लिंकन ने जो एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, टू द पीपल एंड by the people, of the people and for the people.
ये उन्होंने एक बहुत ही इजी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, और उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 में उन्होंने एक डेक्लेरेशन दी थी कि आपने जो ये डेक्लेरेशन दी है, लुक एट योर सी योर डू यू अंडरस्टैंड योर ओन लैंग्वेज, की ये बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। आपने एक डेफिनेशन तो दे दी, आपने ये डेक्लेरेशन तो दे दी, बट क्या रियलिटी में ये डेमोक्रेसी है? सो अब्राहम लिंकन ने उस टाइम पे अपने लोगों से रिक्वेस्ट की, ही अर्ज द पीपल कि ये जो रेशियल इक्वालिटी होनी चाहिए, एंड अगर रेशियल इक्वालिटी नहीं होगी तो ये जो हमारा डेमोक्रेसी है वो क्या है, वो रियलिटी में कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। सो जस्ट लुक एट दिस फिगर, स्लेव सेल्स साउथ कैलिफोर्निया यूएसए 1856, इवन स्लेव सेल भी हुआ करता था। हियर यू सी पोटेंशियल बायर्स एग्जामिनिंग अफ्रीकन स्लेव्स एट एन ऑक्शन, कि उनका एफिशिएंसी जो है वो चेक किया जाता था इसमें। एट द टाइम ऑफ ऑक्शन वो चेक करते थे कितने एफिशिएंट है और कितना उनमें कितनी स्ट्रेंथ है। Okay, so this is all about this chapter, class. Thank you so much for joining the class, everyone. Bye bye, take care.